Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher MB Saleem, Senior Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College Sahibal. I welcome you to the DPS online classes. Let's start our today's lecture. Chapter number 21, Nuclear Physics. Dear students, इससे पहले आप रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, हाफ लाइफ, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर और रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में सीख चुके हैं और हमारे आज के टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम चंद एक बेसिक टर्म्स को रिवाइज करेंगे। एटॉमिक नंबर, number of protons present inside the nucleus of an atom is known as the atomic number. For example, if we talk about sodium, number of protons inside the nucleus of sodium is equal to 11. Therefore, atomic number of sodium is 11 and atomic number is denoted by Z. Atomic weight, number of protons plus number of neutrons present inside the nucleus of an atom is known as its atomic weight. If we talk about sodium, number of protons and the number of neutrons inside the nucleus of sodium is 23. Therefore, atomic weight of sodium is 23. How we can find the number of neutrons inside the nucleus of an atom? In order to find the number of neutrons inside the nucleus of an atom, we subtract atomic number from the atomic weight. If we have to find the number of neutrons inside the nucleus of the sodium, then we have to subtract 11 from the 23, where 11 is atomic number and 23 is the atomic weight of sodium. Therefore, the number of neutrons inside the nucleus of sodium is equal to 12. Law of conservation of mass and charge. According to this law, the total mass and charge of the reactants and products should be equal. Law of conservation of nucleon numbers. According to the law of conservation of nucleon number, the number of nucleons of the reactants must be equal to the number of nucleons of the products. Number of nucleons mean protons and neutrons. Law of conservation of linear and the angular momentum. According to this law, total linear and angular momentum of the reactants must be equal to the total linear and angular momentum of products. Now we see what will happen when the two equal masses collide. In this video, you see that when the two equal masses collide, the mass which is at rest will start moving and the body which was moving will stop. Therefore, when the two equal masses collide, the body at rest will start moving and the moving body will stop. Now we start our topic, nuclear reactions. A process in which the nucleus of an atom is bombarded by the fast moving particle like proton, neutron, deuterons, alpha particle or the gamma rays is called a nuclear reaction. For example, in this reaction,
A slow moving neutron strikes with the atom of uranium. As a result, uranium is converted into the barium and krypton, and 3 neutrons are produced. A huge amount of energy is also produced in this reaction, and such a reaction is known as a न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी इस वाले रिएक्शन में एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम के ऊपर स्ट्राइक करता है, जिसके रिजल्ट के तौर पे यूरेनियम का एटम बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके रिजल्ट के तौर पे 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और एट द सेम टाइम इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है, और इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, इस तरह के एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं और ये ऑटोमेटिकली डिके कर जाते हैं, और डिके करने के बाद नए एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस वाले फिनोमिना को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे रेडियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर 88 है, जो कि 82 से ज़्यादा है, इसलिए रेडियम का एटम एक अनस्टेबल एटम होगा। ये टूट जाएगा और टूटने के बाद ये रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ इसमें एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। रदरफोर्ड ने बताया कि हैवी एलिमेंट्स के अलावा जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, इनमें भी न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे अगर एक एलिमेंट कैपिटल एक्स के ऊपर एक लाइटर पार्टिकल से बम्बार्डमेंट की जाए तो ये एलिमेंट वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ इसमें एक लाइटर पार्टिकल स्मॉल वाई प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ इसमें एक प्रोटॉन भी प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला रिएक्शन भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, और इसको हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देते हैं। Now we discuss about the various conditions for the nuclear reaction. किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी जो है वो वैलिड होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द न्यूक्लियर नंबर जो है ये भी वैलिड होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम शुड बी वैलिड। बैलेंसिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपस में इक्वल होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करें तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ इसमें एक प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 2। और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन हैं, और ये एक सिंगल प्रोटॉन है। 7 + 2 = है 8 + 1, यानी दोनों साइडों पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 7 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल के पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन के पास 9 न्यूट्रॉन्स हैं, और इस प्रोटॉन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। 7 + 2 = है 9 + 0, यानी दोनों साइडों पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपस में इक्वल हैं। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स
including the rest mass energy must be equal to the total energy of the products. आइए हम देखते हैं कि किस तरह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर आप इस ऊपर वाले रिएक्शन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की मास 14.0031 यूनिट्स की इक्वल है और अल्फा पार्टिकल की मास जो है 4.0026 यूनिट्स की इक्वल है। नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अगर हम रिएक्टेंट्स की टोटल मास को निकालें तो रिएक्टेंट्स की टोटल मास 18.0057 यूनिट्स की इक्वल होगी। अब हम प्रोडक्ट्स की मास को निकालते हैं। ऑक्सीजन की मास 16.991 यूनिट्स की इक्वल है और एक प्रोटॉन की मास 1.0078 यूनिट्स की इक्वल होती है। अगर हम प्रोडक्ट्स की मासेस को सम करें तो इसका आंसर आएगा 18.0069। हम देख सकते हैं कि 57 एक छोटा नंबर है जबकि 69 एक बड़ा नंबर है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की मास रिएक्टेंट्स की मास से ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि प्रोडक्ट्स की मास जो है वो रिएक्टेंट्स की मास से क्यों ज़्यादा है, तो हमने इसी क्वेश्चन का आंसर तलाश करना है। डिफरेंस इन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स 18.0069 माइनस 18.0057 इज इक्वल टू आएगा 0.0012 यूनिट्स, यानी रिएक्टेंट्स के मुकाबले में प्रोडक्ट्स की मास 0.0012 यूनिट्स ज़्यादा है। अगर हम इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हम 0.0012 यूनिट्स को 931 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 यूनिट मास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होती है। इसीलिए 0.0012 यूनिट्स मास जो है इसको जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये वाली मास जो है वो 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। हमने क्या देखा कि टोटल मास आफ्टर रिएक्शन जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द टोटल मास बिफोर रिएक्शन बाय 0.0012 यूनिट्स। तो आइए देखते हैं कि प्रोडक्ट्स की मास जो है रिएक्टेंट्स के मुकाबले में क्यों ज़्यादा है। असल में बात यह है कि जब अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन के ऊपर स्ट्राइक करता है तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी प्रोडक्ट्स की मासेस में कन्वर्ट हो जाती है। यही वजह है कि प्रोडक्ट्स की मासेस रिएक्टेंट्स की मासेस से ज़्यादा हैं। ये वाला रिएक्शन तभी पॉसिबल है कि अगर आप रिएक्टेंट्स में 0.0012 यूनिट्स में एडिशनल मास इनमें ऐड अप करें तो, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तभी ये वाली इक्वेशन जो है बैलेंस हो सकती है, तभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मासेस में आपस में इक्वल हो सकती हैं। और पोलोनियम से पैदा होने वाला जो अल्फा पार्टिकल है उसकी एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। अब होता क्या है कि 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में से 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने में यूटिलाइज हो जाती है और बाकी की एनर्जी ऑक्सीजन और जो प्रोटॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तब ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
डियर स्टूडेंट्स, ये वाला रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। यानी अगर आप ऑक्सीजन के ऊपर एक प्रोटॉन से बम्बार्डमेंट करें तो ये नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन को ऑक्सीजन के ऊपर फॉल कराने से पहले इस प्रोटॉन को वेरी हाई वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट किया जाता है, और प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ये पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ जाता है। ये वाली मशीन प्रोटॉन की वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, और जब ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में और एक अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। जब अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो इसके रिजल्ट के तौर पे बहुत से न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं वो होते हैं। और इस तरह का ही एक न्यूक्लियर रिएक्शन जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल किया। जब पोलोनियम से पैदा होने वाले अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट बेरिलियम के ऊपर की गई तो बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो गया और इसके साथ एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। इस तरह से जेम्स चैडविक ने इस वाले रिएक्शन को न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल किया। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि बाद में इसी न्यूट्रॉन को फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक बम में भी फिशन रिएक्शन ही होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इसकी आयोनाइजिंग पावर जो है वो नेग्लिजिबल होती है। और यही वजह है कि न्यूट्रॉन को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जेम्स चैडविक ने किस तरह से न्यूट्रॉन को आइडेंटिफाई किया। नंबर 1, पोलोनियम से पैदा होने वाले अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट की गई और इसके रिजल्ट के तौर पे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, और इन न्यूट्रॉन्स के सामने पैराफिन यानी वैक्स मौजूद है, और पैराफिन एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मौजूद होती है, यानी इसके अंदर प्रोटियम हाइड्रोजन मौजूद होती है। और आप जानते हैं कि प्रोटियम हाइड्रोजन में सिर्फ सिंगल प्रोटॉन होता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन की मास न्यूट्रॉन की मास के इक्वल होती है। अब क्या होगा कि जब ये न्यूट्रॉन पैराफिन में मौजूद प्रोटॉन के साथ जाके टकराएगा तो ये न्यूट्रॉन रेस्ट में आ जाएगा और प्रोटॉन आगे मूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए प्रोटॉन को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इससे ये भी साबित होता है कि एक न्यूट्रॉन की मास प्रोटॉन की मास के इक्वल है, क्योंकि हम रीड कर चुके हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन द टू इक्वल मासेस कोलाइड। और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ स्ट्राइक करता है तो न्यूट्रॉन रेस्ट में आ जाता है और प्रोटॉन आगे मूव करना शुरू कर देता है। आखिर में हम रिवाइज करते हैं कि ओवरऑल हमने इस लेक्चर में क्या सीखा। Besides heavy elements, nuclear reaction can also take place in the lighter nuclei, यानी हैवी एलिमेंट्स के साथ साथ लाइटर न्यूक्लियाई में भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करें तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ साथ जो है एक प्रोटॉन भी पैदा होगा। ये वाला रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी अगर हम एक प्रोटॉन से ऑक्सीजन के ऊपर बम्बार्डमेंट करें तो ये
नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ एक अल्फा पार्टिकल पैदा होगा। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मैस, एनर्जी, चार्ज, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम जो है ये कंजर्व होंगे। यानी रिएक्टेंट्स की मैस, एनर्जी, चार्ज और लीनियर और एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट्स की मैस, एनर्जी, चार्ज, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। अगर हम बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करें तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके में इस रिएक्शन में जो है एक न्यूट्रॉन पैदा होता है। जेम्स चैडविक ने इस रिएक्शन को डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में इस्तेमाल किया। Ionizing power of the neutron is very small, therefore it cannot be identified directly. क्योंकि न्यूट्रॉन की आयनाइजिंग पावर बहुत स्मॉल होती है इसलिए इसको डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।